السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ہما دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے دعا کے ساتھ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ آغاز میں آپ کو بتائیں گے سندھ میں بھی تدریسی عمل کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ صوبے بھر میں اسکول کھل گئے، پہلی سے 8ویں جماعت تک کلاسز میں بھی پڑھائی۔ اسکولوں کے داخلی راستے پر SOPs پر عمل درآمد بھی نظر آیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی بالآخر تدریسی عمل کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ کراچی میں بھی 7 ماہ بعد سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں باقاعدہ کلاسز شروع ہوئیں۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک کے بچے ماسک لگا کر خوشی خوشی اسکول پہنچے۔ اسکولوں کے باہر اور اندر SOPs پر عمل درآمد بھی نظر آیا۔ میرپور خاص، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے کہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا، تاہم بچوں کو اسکول بھیجنا یا نہ بھیجنا والدین کی مرضی ہے۔ کچھ اداروں کو 1 اکتوبر سے تدریسی عمل کی اجازت ہے۔ پہلے مرحلے میں 15 ستمبر کو یونیورسٹی، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طالب علموں کو بلایا گیا تھا۔ 23 ستمبر کو وفاقی وزارت تعلیم نے دوسرے مرحلے میں اسکولز کھولنے کی اجازت دی تھی۔ سکھر ضلع کی تحصیل پنو عاقل میں بھی دوسرے مرحلے میں نرسری سے 8ویں تک کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے فیدا میرانی۔ کورونا وائرس نے جہاں دنیا بھر کو متاثر کر رکھا ہے، وہیں پر پاکستان بھی مہلک وبا سے متاثر ہوا ہے۔ 6 ماہ تعلیمی ادارے بند رہے، بالآخر حکومتی SOPs تحت مکمل تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 9ویں، 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کا آغاز ہوا تھا۔ آج سے نرسری کلاس سے 8ویں کلاس تک دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ 6 ماہ بعد اسکول میں آئے ہوئے شاگردوں کا کہنا تھا، ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارے اسکول میں پرسٹر موڑا ہائی اسکول میں اچھی طرح سے SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے، اور ہماری دلی خواہش یہی تھی کہ اسکول جلدی کھلیں، کیونکہ الحمدللہ اب ہمارے اسکول کھل گئے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں پڑھ کے سیلف اسٹڈی بہت تھک گئے تھے۔ اسکولوں اور کالجز میں حکومتی SOPs پر عمل درآمد یقینی جا رہا ہے۔ اسکول انتظامیہ نے سچ ٹی وی کو بتایا کہ پریزیڈنٹ ماڈل ہائی اسکول پنو عاقل میں کلاسز کی سٹارٹنگ الحمدللہ ہو چکی ہے۔ KG سے لے کے میٹرک کلاس سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ جو چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ بھائی SOPs کو اپلائی کیا جائے، اور پورا گورنمنٹ کا جو رول ہے SOPs کا، اس کے مطابق ہم کلاسز کو فالو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ 100% SOPs کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے تعلیمی اداروں کو SOPs پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ہدایت کی ہے۔ SOPs کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فدا میرانی، سچ نیوز، پنو عاقل۔ سندھ کے دوسرے شہروں کی طرح میرپور خاص میں بھی نرسری سے 8ویں تک کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسکولوں میں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے عبید اللہ۔ کی طرح میرپور خاص میں بھی پرائمری تا 8ویں کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ میرپور خاص سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں کی جانب سے SOPs پر کلاسز شروع کی گئی۔ میومنٹس اسکول سسٹم کی جانب سے کیک کاٹا گیا۔ تمام اسکولوں کی جانب سے کورونا وائرس سے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی، جس میں آنے والے بچوں کے ٹیمپریچر چیک کیے گئے، ہینڈ واش کرایا گیا اور طلبہ نے ماسک بھی پہنے تھے، جبکہ اسکول کھولنے پر طلبہ میں خوشی کی لہر چھائی ہے۔ ہم لوگ 6 منتھس کے بعد اسکول آئے، مجھے بہت ایکسائٹمنٹ تھی، اور ہم لوگ فل SOPs فالو کر رہے ہیں، اور اسکول بھی فل SOPs فالو کروا رہے ہیں۔ ہمارا 1 منتھ کے بعد اسکول کھلا ہے، اور آج ہمارا فرسٹ ڈے ہے اسکول کا، اور آج ہم نے بہت مزہ کرا۔ دوسری جانب اسکولوں کا کھل جانے سے اساتذہ بھی خوش ہوئے اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اسکول اوپن ہوئے ہیں کیونکہ یہ وقت کی بہت ضرورت تھی، بچوں کا بہت حرج ہو رہا تھا، اور ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا تھا گھر میں بیٹھے بیٹھے، تو ہمیں بہت اچھا ہے کہ حکومت نے اسکول اوپن کروائے، اور دوسرا ہم نے حکومت کی تمام SOPs کا خیال رکھا۔ سندھ میں 6 ماہ بعد تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ سیکرٹری تعلیم سندھ نے دادو کے تعلیمی اداروں کا دورہ کیا تو اساتذہ اور طلباء نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ رپورٹ کریں گے شعیب تہیم۔ سندھ بھر میں 6 ماہ کے بعد تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں SOPs کے تحت مستقبل کے معماروں کو تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ 6 ماہ کے بعد اسکول کھلنے پر بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ساتھ ہی اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ نے سہولیات کے فقدان کا بھی شکوہ کیا اور کہا کہ حکومت SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے تعلیمی اداروں کو سہولیات فراہم کرے۔ After 6 months we came at the school, we are feeling very happy and excited. I was very excited about the reopening of the schools. گورنمنٹ کچھ اپنا بھی خیال کرے کہ یہ بچے 6 مہینے گھر میں بیٹھ کے آئیں، اور ہم اساتذہ سارے مل کے جہاں جس چیز کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن فیسلٹیز کے بغیر
चलना बहुत नामुमकिन है। सैनिटाइजर हैं, फेस मास्क हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी डिमांड है गवर्नमेंट के लिए। सेक्रेटरी तालीम सिंध अहमद बख्श नारे जो सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए अचानक दादू पहुंचे। पायलट बॉयज हाई स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा करके असातिज़ा और बच्चों को SOPs पर अमल करने की सख्त हिदायत जारी की। स्कूल के बच्चों ने सेक्रेटरी तालीम सिंध के सामने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग समेत दीगर सहूलियात के फुकदान की शिकायतों के अंबार लगा दिए। स्कूल का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी तालीम सिंध का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस सिंध की तालीम सख्त मुतासिर हुई है। सेक्रेटरी तालीम सिंध का मजीद कहना था कि सरकारी तालीमी इदारों में SOPs पर अमल को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग टीम कायम कर दी गई है, जो रोजाना सरकारी स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए जायजा लेगी। जहां SOPs पर अमल नहीं होगा वहां कार्रवाई की जाएगी। शुएब थईम, सच TV, दादू। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद बलूचिस्तान में प्राइमरी स्कूलों को मजीद 15 रोज बंद रखने का फैसला कर लिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि बलूचिस्तान में प्राइमरी स्कूल मजीद 15 दिन बंद रहेंगे। फैसला कोरोना वायरस केसेस बढ़ने के बायस किया गया। उनका कहना था कि तालीमी इदारे खुलने के बाद केसेस सामने आए हैं। यूनिवर्सिटीज में भी कोरोना वायरस केसेस सामने आए हैं। मुल्क भर की तरह कमालिया के निजी और सरकारी तालीमी इदारों में भी SOPs के तहत तदरीसी अमल जारी है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में तलबा को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर SOPs के साथ अमल दरामद करवाया जा रहा है। इस मौके पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सैयद आरिफ महमूद बुखारी का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, फर्स्ट हमारी कॉलेज की एंट्री है, सेकंड हमारे डिपार्टमेंट के अंदर लोग जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वो लोग कंफर्म कर रहे हैं। क्लासेस के अंदर बच्चों को हैंड सैनिटाइजर के यूज़ और उसकी हैंड वॉशिंग और साथ ही मास्क के यूज़ पे प्रॉपर उसको हम लोग गाइड भी कर रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं, उसको कंफर्म भी कर रहे हैं कि बच्चे वाकई उसको यूज कर रहे हैं। कोरोना के खतरात कम होने के बाद जैसे ही हमारे तालीमी इदारे खुले, हमने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर तलबा को अमल करवा रहे हैं ताकि तमाम स्टूडेंट इस मूजी मरज से महफूज रह सकें। कॉलेज के दाखिली दरवाजे पर तमाम तलबा और असातिज़ा को थर्मल गन से टेम्परेचर चेकिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवाया जाता है और तमाम स्टूडेंट और असातिज़ा को मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दिया गया है। क्लास में सोशल डिस्टेंस के अमल को यकीनी बनाया गया। हर एक क्लास में तलबा की तादाद 25 से ज्यादा नहीं रखी गई। कोरोना वायरस एक मूजी मरज है जो कि अभी खत्म नहीं हुई, इससे हम एहतियात करके ही खुद को बचा सकते हैं। तालिब इल्म पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है और सरमाया, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमालिया। अशियाए खुरनोश की कीमतों में मनपसंद इजाफे का तसलसल न रुक सका। मुनाफाखोरों ने क्वेटा में टमाटर 1 किलोग्राम की कीमत 110 रुपए मुकर्रर कर दी। शहरी शदीद तशवीश का शिकार हैं। अब्दुल गनी काकिर रिपोर्ट करेंगे। गुज़श्ता 3 माह के दौरान वादी क्वेटा में जिले प्राइस कंट्रोल कमेटी की बेहिसी के बायस अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में 150% से जायद इजाफा हो चुका है। बुनियादी जरूरत की दीगर अशिया की तरह मुनाफाखोरों ने अब टमाटर की कीमत में भी मनपसंद इजाफा कर दिया है। क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत 110 रुपए तक पहुंच गई है। ताहम इस इजाफे की वजूहात ताहाल वाज़ेह नहीं की गई हैं। हर चीज आसमान से बातें करने लगी। जो गरीब आदमी के पहुंच में था सब्जी, वो भी काफी दूर हो चुका है आवाम के पहुंच। यहाँ पे प्रेस कंट्रोल कमेटी नहीं है, यहाँ पे हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कंट्रोल करने वाले कोई नहीं। गवर्नमेंट जो रेट अनाउंस करती है, ये सब्जी वाले कारोबार वाले इस पे अमल नहीं करते। अगर ऊपर से कोई रेट आता है तो ये वही रेट नहीं चलाते। अगर गवर्नमेंट 20 रुपया कम करता है तो ये 50 रुपया ज्यादा करते ऊपर से। जो ग्रांड फरोश है इनके खिलाफ एक्शन ले, मतलब एक टीम इसके लिए खसूसी बनाए। शहरी कहते हैं कि मौजूदा मखलूत हुकूमत ने सूबाई दारुल-हुकूमत में लोगों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ रखा है और मसनूई महंगाई में मुलविस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। पिछले हुक्मरानों में आप देख ले, ये इस तरह तो बिल्कुल था ही नहीं जैसे कि आजकल के हुक्मरानों के हालात हैं। अमीर गुजारा कर सकता है, गरीब गुजारा नहीं कर सकता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कुछ सस्ताई हो जावे गरीब लोग के लिए। ताजरों का कहना है कि टमाटर की कीमत में इस बेतहाशा इजाफे की एक अहम वजह हमसाया ममालिक से टमाटर की दरामदात में गैर मामूली कमी भी है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, क्वेटा। एशिया के गर्म तरीन इलाके सिबी में साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। एशिया के गर्म तरीन इलाके सिबी में पानी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। अलाहाबाद, वाबड़ा कॉलोनी, हाड़ा मोहल्ला समेत कई इलाकों में गुज़िश्ता 1 माह से पानी नापैद है, तो वहीं कई इलाकों में बदबूदार पानी फराम किया जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की अदम फरामी की वजह से महंगे दामों टैंकर डलवाने पड़ते हैं, जो महंगाई
की चक्की में पिसती हुई आवाम की जेब पर इजाफी बोझ है। तकरीबन 1.5 महीना हुआ कि हमें बदबू वाला पानी दिया जा रहा है। हमने हकाम बाला को पहले भी बताया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर को पहले भी टेलीफोन किया, मुलाकात की, लेकिन कोई इस पर असर नहीं हुआ। जनाब वाली तमाम लाइनें टूटी हुई हैं और हम मजबूर हैं। हम टैंकर मंगाते हैं, तकरीबन हफ्ते में 2 दफा 800-900 का पानी मंगाते। इलाका मकीनों ने महकमा PHE के आला हुकाम समेत डिप्टी कमिश्नर सिब्बी और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इन्हें पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज सिब्बी। डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा कहते हैं म्यूनिसिपल सर्विस और प्राइस कंट्रोल अवलीन तरजीह है। ये वो चीजें हैं जिनसे हर शहरी मुतासिर होता है। नासिर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। म्यूनिसिपल सर्विसेज और प्राइस कंट्रोल अव्वलीन तरजीह है। ये वो चीजें हैं जिनसे हर शहरी मुतासिर भी होता है और मुस्तफीद भी। भक्कर का चार्ज संभालने के फौरी तौर पर इन्हीं मसाइल पर तवज्जो दी और उनका हल किया। ये बात डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा ने सच टीवी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कही। उनका कहना था कि शहर भर में सफाई की सूरत हाल बेहतर की, बंद डिस्पोजल खुलवाई और शहर के वाहिद अंडरपास को फंक्शनल करवा दिया। मेरी सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी म्यूनिसिपल सर्विसेज ही होती है। म्यूनिसिपल सर्विसेज इसलिए है जी कि हमारा हर बंदा जो है इसके साथ अटैच है। ये होती है वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से होती है कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हर बंदा, हर शहर का हर बंदा, हर हाउस होल्ड इफेक्ट हो रहा होता है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर शहर की खूबसूरती में इजाफा के लिए सिटी ब्यूटिफिकेशन प्लान पर असर नौ काम शुरू किया और महदूद अरसा में झंग रोड को खूबसूरती से सजाया गया और खंडरात का मंजर पेश करने वाले जिनाह पार्क को भी बहाल कर दिया गया। 2 जो सेक्टर हैं हमारे, प्राइस कंट्रोल और म्यूनिसिपल सर्विसेज, दे आर माई प्रायोरिटी और इसको ही मैं बेहतर समझता हूँ क्योंकि इससे हर बंदा इफेक्ट हो रहा है। इरादे पुख्ता हों और नेक नियति शामिल हो तो किसी भी ऑफिसर के लिए काम करना मुश्किल नहीं होता। ये ऑफिसर की अहलियत पर है कि वो काम के लिए कितना टाइम देता है और कितना उसका फॉलो अप लेता है। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बासबलोच, सच टीवी भक्कर। सेवन शरीफ से 45 किलोमीटर फासले पर मौजूद मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब तारीखी और तफरीही मकाम पंजतीन पाक के पाक बाग सिंध हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से ज़ायरीन और सियाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट देखेंगे। सेवन शरीफ यूं तो तारीखी शहर और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की नगरी के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन सेवन और आसपास में कुछ कदीमी मकामात भी वाक़े हैं, जिनमें उल्टा किला, लाल बाग, लकी शाह सदर के कुदरती चश्मे और अली मौला के कचहरी के मकाम ज़ायरीन और सयाहों के तवज्जो का मरकज है। पंतनी बाग हजरत अली करमल्लाह वजह के नाम से मंसूब है। कुदरती पानी के चश्मे और मौला अली मुश्किल कुशा के कचहरी का मकाम सेवन से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर बद्रो जबल के पहाड़ी इलाकों में काई और नेक शरीफ में वाक़ है, जहाँ ज़ायरीन और सयाहों की बड़ी तादाद देखने में मिलती है। नेक शरीफ काई पंतनी बाग जाने वाले रास्ते हुकूमत की अदम तवज्जो के बाद टूट फूट का शिकार है। बाग में ज़ायरीन और सयाहों के लिए ना कोई रहाश, ना कोई होटल, ना ही वॉशरूम का बंदोबस्त है, जिसके बाद मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जगह अच्छी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की किसी भी किस्म की कोई भी फैसिलिटीज वगैरह नहीं, ना वॉशरूम वगैरह का, ना ही किसी और किस्म का कोई इंतजाम। सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया जामशोरों को चाहिए कि पंतनी पाक रोड को तामीर के लिए इकदाम किए जाएं और बाग में वॉशरूम बनाया जाए ताकि सयाहों और ज़ायरीन को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन राजा सोलंकी के साथ शमीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए सच न्यूज के साथ। बिहाड़ी में सरकारी तिबी मरकज का नाम तो तब्दील कर दिया गया, लेकिन इमारत की खस्ता हाली ताहाल बरकरार है। शहरी कहते हैं नाम बदल गया, अब इमारत की तामीर नौ भी की जाए। मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे। विहाड़ी शहर के वक्त पीपल्स कॉलोनी में गवर्नमेंट यूनानी शफाखाना खस्ता अली का शिकार हो चुका है। यूनानी शफाखाना 40 साल कबल तमीर किया गया था। इसमें तकरीबन 100 मरीज रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। मरीजों का चेकअप और दवाई फ्री दी जाती है। सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं। शहरियों का कहना है कि जो देसी अद्वियात का सिलसिला था वो खत्म करके अब गवर्नमेंट ने और डीसी साहब ने एक डॉक्टर साहब बैठा दिए हैं जो सरकारी अद्वियात से 10 रुपए की पर्ची लेते हैं, वो भी ऐसे इलाज करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि वो बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल इसकी खस्ता है, किसी भी वक्त मरीज और डॉक्टर साहबान की जान को खतरा है। डिस्पेंसरी की इमारत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। मरीजों के लिए तमाम सहूलियात खत्म कर दी गई हैं। शफाखाना में मरीजों के लिए बनाया जाने वाला बाथरूम भी बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। शफाखाना की इमारत 40 साल पुरानी होने की वजह से जगह जगह टूट फूट का शिकार रह चुकी है। इमारत खस्ता होने की वजह से किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। डीसी विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने शफाखाना का नाम तब्दील करके बिलाल अहमद डिस्पेंसरी रख दिया है। अब इसकी बिल्डिंग भी बनाई जाए ताकि शहरियों को शफाखाना में बेहतरीन सहूलियत
मुहैया की जा सके। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लाख, सच न्यूज बिहाड़ी। वजीर आला पंजाब का आबाई शहर डेरा गाजी खान बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहर में गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेना भी मुहाल हो गया। मोहम्मद अली रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान बैक वक्त खुशबख्ती और बदकिस्मती की इंतहाओं का सामना कर रहा है। वजीर आला पंजाब, वफाकी वजीर माहौलियात, मुशीर सेहत और चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड का शहर होना अगर खुशबख्ती है तो इतने नुमाइंदगान के बावजूद शहर की हालत जार बदकिस्मती का मंजर बनी हुई है। सारा शहर गंदगी और सीवरेज के पानी से अटा हुआ है, जिसके बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। बदबू, टूटे फूटे रास्तों और गंदगी के अंबारों से परेशान हाल शहरी अरबाब अख्तियार से सूरत हाल का नोटिस लेने और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करते चले आ रहे हैं। जी, हम आपका शुक्रगुजार हैं जिसने आप लोगों ने आए हमारा साथ दिया है। ये देखे सीवरेज का पानी कब का ठहरा है। जिला इंतजामिया को हमने रोज दरखास्तें दी हैं, कमिश्नर को और डीसी को, कारपोरेशन को। आज तक उन लोगों ने यहाँ तक पानी निकालने नहीं आया। यहाँ पर जो हम आते जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। जरूरत इस अम्र की है कि शहर की सफाई के निजाम को बेहतर बनाकर शहरियों को जीने का हक दिया जाए। जैतून का फल कई बीमारियों का इलाज है। चकवाल की तहसील कलर कहार में 5वीं कौमी जैतून मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद में शिरकत की है। राजा साकिब रिपोर्ट करेंगे। जिला चकवार की खूबसूरत और कुदरती हुस्न से मालामाल तहसील कलर कहार में कौमी जैतून मेले का इनेकाद किया गया। मेले का इनेकाद एग्री टूरिज्म, SA गार्डन, ओलिव फाउंडेशन और सेवियर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से तलबा तलबात, फार्मर्स और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौमी जैतून मेले का इनेकाद का मकसद मुल्क भर में जैतून की काश्त को फरोग देना है। कौमी जैतून मेला में सेमिनार का भी इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने मेले में अवाम को जैतून के बारे में आगाही देते हुए कहा कि जैतून के फल में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मौजूद है। जैतून का फल अपनी ग़िज़ाई और अद्वियाती अहमियत के पेश नज़र अतिया खुदाबंदी है। सेमिनार के अख्ताम पर मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदगान और मौजूद शख्सियात में शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, जबकि मेले में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल। लैया में सरकारी सतह पर नाकिस और जाली बीज के फरोख्त का इंकशाफ हुआ, जिससे किसानों को करोड़ों का नुकसान होने का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। हमारी बेशतर आबादी का इन्हिसार बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत पर है। किसान का मुल्की मैशत में किरदार अहमियत कहाँ मिला है, मगर हुकूमती सतह पर किसान को मुबैना तौर पर जरिए और गलत बीज फराहम किए जाने की वजह से लैया में किसानों को जहाँ करोड़ों का नुकसान पहुँचा, वहीं किसान मुआशी बदहाली का शिकार है। पंजाब सीट वाले कणक का बीज देने वो भी सही नहीं होता। 2 नंबर बीज होंगे, बीज मिक्सिंग होती है विच जरा बीज करके देने वो बीज नहीं होता। ज़राअत की अहमियत पाकिस्तानी मैशत दे विच रीढ़ दी हड्डी चाहिए, लेकिन हुकूमत ज़राअत को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंदी पई। किसान को बीज दिता गया पंजाब सीड की तरफों, वो बीज 2 नंबर निकला जाने पर लखां रुपए का नुकसान थी है। अगर किसान खुशहाल ना हो सी तो पाकिस्तान की मैशत की में खुशहाल हो सी। जब हमारी महकमा ज़राअत के अफसरान से बात हुई तो उनका कहना था बीज पंजाब सीड्स की जानिब से दिए गए। अगर हमें कोई इस हवाले से दरखास्त मसूल हुई तो तहकीकात की जाएंगी कि कैसे और किस तरह जेली और गलत बीज किसान को दिए गए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लैया। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में 2 नहरों के संगम पर बनाए गए चॉकिंग ट्रैक को म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से आर्टिफिशियल मशरूम्स, स्ट्रीट लाइट्स और प्लांटेशन करके सजाया गया। जानजेब खान रिपोर्ट करेंगे। कानपुर में 1.5 किलोमीटर के फासले पर मुहित 2 नहरों के संगम पर बनाए गए जॉगिंग ट्रैक की सजावट के लिए असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ चीना ने चीफ ऑफिसर बल्दिया राना महमूद अहमद और अपनी टीम के हमरा काम शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल मशरूम्स, बैलून, स्ट्रीट लाइट्स, प्लांटेशन और खूबसूरत गेट लगाकर ट्रैक की तज़ीनो आराइश की गई है। जॉगिंग ट्रैक के दोनों तरफ बहती नहरों के साथ साथ ट्रैक की सजावट करने से न सिर्फ शहरियों को सेहतमंद और पुरसुकून माहौल मैसर हुआ है, बल्कि ट्रैक की खूबसूरती को भी 4 चांद लग गए हैं। माशाल्लाह इसी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और खानपुर में कोई भी तफरीही मकाम नहीं था। अब इस वजह से अब ये है कि माशाल्लाह अब यहाँ पे लोग शाम के टाइम बहुत ज़्यादा वॉक भी कर सकते हैं और तफरीही प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे लोग आ सकते हैं। हम असिस्टेंट कमिश्नर के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। शाम को या किसी टाइम भी यहाँ पर आके तफरीह के लिए अपना टाइम स्पेंड कर सकें और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकें। जैसे कि शहरियों को कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने ट्रैक के लिए बहुत अच्छा काम किया है और तफरीही मकामात खानपुर में होने चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज खानपुर। खोए, पिस्ते और बादाम से तैयार करदा रहीम यार खान की तहसील खानपुर के पेड़े न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत का एक अलग ही मकाम रखते हैं। ये मुनफरिद और मजेदार पेड़े कैसे तैयार किए जाते हैं और इनकी वजह शोहरत क्या है, इसी हवाले से रहीम यार खान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद फारूक रिपोर्ट करेंगे।
तीन सूबों के संगम पर वाक़या होने की वजह से जिला रहीम यार खान को एक खास अहमियत हासिल है। अगर आप भी कभी जिला रहीम यार खान का सफर करें तो आप लाजमन रहीम यार खान की तहसील खानपुर के पेड़े खाना पसंद करेंगे। ये पेड़े पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुमालिक में भी खासी शोहरत के हामिल हैं। हर किसी के मनपसंद खानपुर के ये पेड़े बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं। दूर दराज के देही इलाकों से कई मन दूध इकट्ठा करने के बाद इसे बड़े कड़ाहे में खूब अच्छी तरह से पकाया जाता है। पेड़े बनाने के लिए दूध में अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम, चीनी और मुख्तलिफ इकसाम की मज़ेदार चीज़ें इस दूध में मिक्स की जाती हैं। पेड़े बनाने वाले कारीगर तमाम पेड़ों को एक ही डिज़ाइन में निहायत ही खूबसूरत अंदाज से तैयार करते हैं। जिला रहीम यार खान के रिहायशी तहसील खानपुर के पेड़े बड़े शौक से अपने अजीज़ो अकारब और दोस्तों को मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुमालिक में बतौर तोहफा भिजवाते हैं। खानपुर के पेड़े और खोया ये खानपुर की मशहूर सवाद हैं और इसे बहुत पसंद किया जाता है। पेड़े और खोया अजीज़ो अकारब को तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं, जिनको बहुत पसंद किया जाता है, ये लेके जा रहे हैं। यूं तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की बेशुमार अशिया मशहूर है, मगर खानपुर के पेड़ों की तो बात ही कुछ अलग है। आप भी जब कभी जिला रहीम यार खान तशरीफ लाएं तो तहसील खानपुर के पेड़ों को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। हैदराबाद जो कि तारीखी लिहाज से अपना एक मकाम रखता है, तो वही हैदराबाद में मौजूद हैदराबाद की मशहूर लस्सी भी अपनी मिसाल आप है। लस्सी में खालिस दूध, मावा, रबड़ी, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट करेंगे जानजेब अली। हैदराबाद जो कि तारीखी लिहाज से अपना एक मकाम रखता है, तो वहीं हैदराबाद में मौजूद हैदराबाद की मशहूर लस्सी भी अपनी मिसाल आप है। हैदराबाद पक्के किले के मकाम पर मौजूद लस्सी की ये दुकान पिछले कई दहाइयों से मौजूद है। हैदराबाद में लस्सी का ये कारोबार पाकिस्तान बनने के बाद हिजरत करके आए एक घराने ने शुरू किया था। मुनफरिद जायका और मुनफरिद अंदाज से तैयार की जाने वाली इस लस्सी में खालिस दूध, मलाई के साथ आला क्वालिटी का मावा और स्पेशल रबड़ी, पिसे हुए खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल इसके जायके को मुनफरिद बनाता है। हैदराबाद की मशहूर ये है लस्सी, बड़ी कढ़ाई वाला, जो कि आज तकन 60 से 70 साल का अरसा हो गया। यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी है, हम 2-3 सालों से पीते हुए आ रहे हैं लस्सी। अब बहुत जबरदस्त लस्सी है, बहुत जबरदस्त। जो एक मर्तबा इस मशरूब का इस्तेमाल करता है तो अगली बार खुद ब खुद खिंचा चला आता है। मुनासिब दाम और अलग पहचान की वजह से जहां लोग खुद लस्सी पीने आते हैं, तो वहीं अपने फैमिलीज और बच्चों को भी साथ लाते हैं। जहां मुनफरिद जायका इस मशरूब की पहचान है, तो वहीं साफ सुथराई और हिफ्जान सेहत के असूलों का भी खास ख्याल रखा जाता है। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने और जिस्म को चुस्त तवाना रखने के लिए लस्सी के इस मशरूब का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लस्सी हमारे पीते हैं, जिस्म भी ठंडा रहता है बंदे का, और गर्मी में जितनी लस्सी बंदा पी सके अच्छी है। 7 दहाइयों से लस्सी के इस कारोबार से वाबस्ता इसके मालिक का कहना है कि वो अपने आबाओ अजदाद के इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं और वही जायका और वही मयार आज भी बरकरार रखे हुए हैं। खालिस दूध और आला मयार ही इनकी पहचान है। चीनी, दूध, दही, बर्फ और जो है रबड़ी और मलाई, ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ लस्सी मैदे और जिगर की गर्मी में कमी लाती है, तो वहीं इंसानी जिस्म को कुव्वत बख्शने और चुस्त तवाना रखने में खालिस लस्सी भी किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन इश्ताक हुसैन के साथ जानजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। हरीपुर में कुवैत के ताउन से 8 नए मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें तालीम, सेहत और पीने के साफ पानी के मंसूबे शामिल हैं। ताहिर अवान रिपोर्ट करेंगे। हरीपुर में एजुकेशनल कम्प्लेक्स निजी फाउंडेशन में 8 मंसूबों की इफ्तिताई तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान और कुवैती सफारत खाने के नुमाइंदे फादुल मिजाल थे। तकरीब में मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोगों समेत साफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ग्रामी ने कहा कि इन मंसूबों से यतीम बच्चों के लिए 24 कमरों पर मुश्तमिल बिल्डिंग, BHU और साफ पानी के तसलसल को बरकरार रखने के मंसूबे थे। जो एक छोटा सा इदारा था, आप उसको एक बहुत बड़ा एक इदारा आपने बना दिया, और मैं समझता हूं कि ये तो आपकी तरफ से कुरान शरीफ की मेहरबानी के साथ और हुक्म के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान की बुनियादें जो है वो और ठोस और मजबूत करेंगे। कुवैत के ताउन से खुबैब फाउंडेशन हजारों यतीम बच्चों और औरतों की कफालत कर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियों ने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ताहिर अवान, सच न्यूज, हरीपुर।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے جنت نظیر وادی سوات کا دورہ کیا اور وزیر اعظم کی کلین اینڈ گرین مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ وقار سواتی رپورٹ کریں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کی چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے سوات کا دورہ کیا۔ دورہ سوات کے موقع پر انہوں نے سوات کی سیاحتی مقامات بحرین کا علام اور رشو کا دورہ کیا۔ انہوں نے وادی سوات کی حسن کی خوب تعریف کی۔ جہاں بھی ہم گئے ہر طرف قدرت کے نظارے دیکھے ہم نے۔ آپ نیچے دریا بہ رہا ہے اور زور و شور سے بہ رہا ہے اور اوپر سے پہاڑی کی چوٹی سے چشمہ پھوٹ کے نیچے آ رہا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک ایک خوبصورت ملک ہے۔ افواج پاکستان دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے۔ ہماری فوج اللہ کی طرف سے دنیا کی بیسٹ افواج میں سے ہے اور ہمارا ملک خوبصورت ترین ملک ہے۔ ہمارے پہاڑ ہیں، ہمارے پاس ریگستان ہے، ہمارے پاس ساحل سمندر ہے اور ہمارے پاس پنجاب کے میدان ہیں اور یہ خوبصورت علاقہ ہے۔ سوات کی دورے کے موقع پر سینیٹر عبدالقیوم نے پاکستان بوائے اسکاؤٹ کی کمشنر سردار وقار شہزاد ایڈوکیٹ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر سماجی شخصیات حاجی شہزاد اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی عرفان اللہ بھی موجود تھے، جبکہ سینیٹر عبدالقیوم نے پودا بھی لگایا۔ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، سچ ٹی وی، سوات۔ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن حافظ آباد میں کلین اینڈ گرین مہم کے تحت سرکاری اداروں کے ساتھ عوام اور سماجی تنظیموں کی جانب سے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ ظفر اقبال رپورٹ کریں گے۔ حافظ آباد ضلع بھر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کلین اینڈ گرین پروگرام کی کامیابی کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ عوامی اور سماجی تنظیموں کی مشترکہ کوشش جاری ہے۔ ماحول کی خوبصورتی اور آلودگی کے خاتمے کے لیے کلین اینڈ گرین پروگرام کی کامیابی بہت ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نوید شہزاد مرزا اور ڈی پی او حافظ آباد حسنین حیدر نے کیا کہ وزیر اعظم کے کلین اینڈ گرین پروگرام کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے موقع پر افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر آصف نواز نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے سرکاری محکموں کے افسران، ملازمین، سماجی اور کاروباری تنظیموں کے نمائندے اور ٹائیگر فورس کے جوانوں نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا سرسبز و شاداب پاکستان کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نوید شہزاد مرزا اور ڈی پی او حافظ آباد حسنین حیدر نے پودا پبلک پارک فوارہ چوک میں لگایا۔ کیمرامین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ شہتوت کے درخت کی ٹہنیوں سے بنائی جانے والی ٹوکریوں کی گھریلو صنعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہے، مگر منڈی شاہجونا میں دریائے ستلج کے کنارے مقیم افراد اب بھی شہتوت کی لکڑی سے ٹوکریاں بنا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ریاست علی رپورٹ کریں گے۔ منڈی شاہ جمنے میں غربت کی زنجیروں میں جکڑے دریائے چیناب کے کنارے پر بیٹھے غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لوگ آج بھی ٹوکرا بنا کر پرانے پاکستان کی طرح نئے پاکستان میں بھی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج جو ہمارے بچے غربت کے باعث تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کاپی پینسل ہونی چاہیے تھی۔ زمیندار نے بڑے لوگوں نے جاتے کوٹھیاں پڑھتے ہیں، بڑے سکولیں پڑھتے ہیں، ساڈے پرائمری نہیں مل رہا سانو۔ اسی پاکستانی ہیں، ووٹ ہی ساڈے پاکستان دے، رہائش پاکستان دی، مزدوری کہہ رہے ہیں ٹوکرا بنتا کدے نہیں بنتا، دھکیاں نال وڈ کے لیمنا۔ ساڈے بچے سکول داخل ہو جاویں تے سانو کو بوئیں یا کو رقبہ ملا جائے جے تے اسی 12-13 گاڑے سے بہ جاویے، اگے بھی ووٹ ساڈے بنے ہوئے ہیں، ووٹ اسی دیتے ہیں۔ آج وہ ٹوکرے بنانے پر مجبور ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے تعلیم حاصل کروا سکیں۔ ہماری تبدیلی سرکار سے اپیل ہے کہ ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے ہمارے بچوں کو سکول میں بھی داخل کروایا جائے۔ کیمرہ مین محمد شہزاد کے ساتھ ریاست علی ہاشمی، سچ نیوز، منڈی شاہ جمنا۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ TV.pk اور دیکھتے رہیے سچ۔